Hey guys, welcome to my channel. So we were discussing about ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड की हमने सोसाइटी और पॉलिटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन इंग्लिश. So during Rigvedic time, the gods worshipped were generally the personified powers of nature. It was believed that divine powers were capable of conferring both boon and punishment on man. Fire was sacred as it was regarded as intermediary between man and God. There were nearly 33 gods. Later day tradition classified them into three categories. These are terrestrial, that is Prithvisthan, aerial or intermediary, that are Antriksthan, and celestial, that is Dvajsthan gods. Let's discuss these three. So terrestrial and Prithvisthaniya gods are Prithvi, Agni, Som, Brihaspati and rivers. Aerial and intermediary gods are Indra, Rudra, Vayuvat, Prajanya. Celestial or Dvajsthaniya gods are those Surya in its five forms, Varun, Aditi, Usha and Ashwin. Indra, Agni and Varun were the most important deities of Rigvedic Aryans. Indra, also called as Purandar, which is destroyer of forts, is the most important god, and approximately 250 Rigvedic hymns are devoted to him. He played the role of warlord and was considered to be the rain god. Next is Agni. So Agni is the second most important god of Rigvedic period. 200 Rigvedic hymns are devoted to him. Fire god was considered to be the intermediary between gods and people. Next is Varun. Varun is the personified power and personified water, and was supposed to uphold the Reet or the natural order, and that is why it is also known as Ritasya Gopa. Next is Surya in its five forms. So Surya was worshipped in five forms, which are Surya, Savitri, Mitra, Pushan and Vishnu. Let's discuss these five. Let's discuss these five in detail. So Surya, that is the sun, is the god who used to drive daily across the sky in his chariot driven by 7 horses. Next is Savitri. So she is the god of light, and famous Gayatri mantra is addressed to her. Next is Mitra. Mitra is a solar god. Next is Pushan. So Pushan is the god of marriage, and Pushan's main functions were guarding the roads, herdsmen and straying cattle. Next is Vishnu. Vishnu is the god which covered earth in three steps, that are Upkram. This concept is Upkram, right? Next is Som. So originally a plant producing a potent drink during course of Agnishtoma sacrifice could be bhang or hemp, called king of plants, identified later with the moon. So Som was the plant which was potent of producing a drink during the course of Agnishtoma sacrifice, and could be this drink could be bhang, and he was called the king of plants, identified later with the moon, and later on this was identified as moon. The ninth mandal of Rigved, which contains 114 hymns, is attributed to Som. That's why it is called the Soma mandal. Next, let's discuss other gods or goddesses. So Rudra, the god of animals. Dos, the oldest god and father of the world. Next is Yam, the god of death. Next is Ashwini or Nasatya. These are the god of health, youth and immortality. Next is Aditi, the great mother of gods. Next is Sindhu, the river goddess. So sometimes gods were visualized as animals, but these were no animal worship. The nature of Rigvedic religion was henotheism, that is, belief in many gods, but each god standing out in turn as the highest. Their religion primarily consisted of worship of gods with a simple ceremonial activity known as yajna or sacrifice. Sacrifices consisted of offering of milk, ghee, grains, flesh and som. सो ये थी बात रिलीजन के बारे में. अब इन बातों को हम इंग्लिश में डिस्कस कर चुके हैं, सो इनको अब हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो जो ऋग्वेदिक पीरियड का जो रिलीजन था उसमें क्या होता था, बेसिकली वो जो नेचर गिवन थिंग्स थी या नेचर को ही भगवान की तरह पूजते थे. ठीक है, मेनली जो फायर थी जैसे, जिसको वो इंटरमीडिएटरी मानते थे, मतलब एक जो इंटरफेस मानते थे वो मैन और गॉड के बीच का, मतलब दोनों के बीच का जैसे होता है ना कि संबंध स्थापित करने वाली चीज़, उसको मानते थे फायर को. ठीक है,
बेसिकली वो मानते थे कि जो नेचर गिवन थिंग है या नेचर है, जो वेरियस गोड्स को जो नेचर का रूप में वेरियस गोड्स को मानते हैं, वो ये दोनों चीज़ें करते हैं, या तो पनिशमेंट भी देते हैं और आपको तरक्की भी देते हैं। वेरियसली उनके 33 गोड उन्होंने माने हैं उस समय में। उनके ट्रेडिशन में इन गोड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। टेरेस्ट्रियल मतलब जो भूस्थलीय होते हैं, जैसे पृथ्वी स्तन, ठीक है। फिर होते हैं अंतरिक्ष स्तन मतलब जो आसमान के गोड्स हैं, जिन्हें एरियल और इंटरमीडिएटरी गोड्स कहते हैं। और द्यूस्थन मतलब सेलेस्टियल, जो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो वाले गोड। टेरेस्ट्रियल गोड कौन कौन से होते थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर्स, वेरियस जो भी रिवर्स हैं, ठीक है। आगे है अंतरिक्ष स्तनीय गोड्स कौन कौन से थे? इंद्र, रुद्र, वायुवत, प्रजन्य। नेक्स्ट है सेलेस्टियल गोड्स। सो ये कौन कौन से थे? दोष, सूर्य और सूर्य के 5 फॉर्म्स, वरुण, अदिति, उषा और अश्विन। इन सबको डिस्कस करते हैं। सो इंद्र, अग्नि और वरुण जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोड्स थे उस समय, मोस्ट पॉपुलर थे, ठीक है। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। पुरंदर का मतलब क्या है? जो जो किले को डिस्ट्रॉय करने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोड थे उस समय की, और इनके डिवोटेड 250 ऋग्वेदिक हाइम्स हैं, ठीक है। ये वॉरलॉर्ड थे, मतलब लड़ाई के देवता थे, और इन्हें रेन गॉड भी कह के बुलाया जाता है, क्योंकि ये बारिश करवाने के लिए भी जिम्मेवार माने जाते थे। आगे थे अग्नि, और अग्नि जो थे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे, और 200 ऋग्वेदिक हाइम्स इन्हें डिवोट की गई हैं। फायर गॉड को भी इंटरमीडिएटरी कहा जाता था भगवान और इंसानों के बीच। आगे हैं वरुण, जिन्हें मतलब पानी की ऐसी फॉर्म जिसको आप इंसानी रूप दे देते हैं, या मतलब जिसकी आप पूजा करते हैं, वरुण कहा जाता था उन्हें, ठीक है। इनका काम क्या था कि रीत को बनाए रखना, मतलब जो नेचर का ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना, इसीलिए इन्हें ऋतस्य गोपा भी कह के बुलाते थे। नेक्स्ट है सूर्य। जो सूर्य थे, सूर्य देव थे, उनको 5 फॉर्म्स में माना जाता था। एक थी सूर्य, सवित्री, मित्र, पुषान और विष्णु। सूर्य की फॉर्म को सूर्य फॉर्म क्या थी उनकी, कि ऐसी फॉर्म थी जो क्या करती थी, वे अपने चैरियट, जो 7 घोड़ों वाला उनका जो चैरियट था, उस पर वो डेली जो स्काई है, आसमान में, वो चक्कर लगाते रहते थे। आगे है उनकी फॉर्म सावित्री, जो गॉड ऑफ लाइट जिन्हें कहा जाता है, और सावित्री माता वही हैं जिनको एड्रेस करके गायत्री मंत्र बोला गया है। नेक्स्ट है मित्र, वो भी एक सोलर गॉड थे। नेक्स्ट है पुषान, ये क्या है? गॉड ऑफ मैरिज हैं, ठीक है। और इन्हें ऑल्सो इनका एक और काम क्या था कि जो भी सड़कें थी या हर्ड्समैन थे, मतलब भेड़े चराने वाले हैं, या जो स्ट्रेइंग कैटल है, जो ऐसे कैटल घूम रही है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, गार्ड करना। नेक्स्ट है विष्णु। तो विष्णु भगवान वो थे जिन्होंने अपने 3 स्टेप्स में पूरी धरती को नाप लिया, तो वो वाले विष्णु भगवान की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, अब एक और गॉड की बात करते हैं, सोम, ठीक है। तो ओरिजिनली क्या होता था, एक ऐसा प्लांट जो जिससे एक ऐसा ड्रिंक बनाया जा सकता था, जो जिसे किंग ऑफ प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, भांग भी कह के बुलाते हैं, हेम्प कह के बुलाते हैं उसको। सोम का मतलब जो वो प्रोड्यूस हो रही है ड्रिंक, उसको सोम कह के बुलाते थे, ठीक है। ये प्रोड्यूस किस प्रोसेस के दौरान होती थी, वो भी पूछा जा सकता है। तो एक अग्निस्तोमा सेक्रीफाइस होता है, उसके दौरान जो ये ड्रिंक प्रोड्यूस होती थी, उसको सोम कह के बुलाते थे। और फिर लेटर ऑन जो चंद्रमा है, मून है, उसको भी सोम के साथ आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। जो ऋग्वेद है उसके 9th मंडल में सोम की डिस्कशन की गई है। सोम को एट्रीब्यूटेड है 9th मंडल, और उसके 114 हाइम्स हैं, ठीक है। और इसीलिए इस मंडल को सोम मंडल कह के भी बुलाते हैं। कुछ और गॉड्स की बात करें, गॉड्स और गॉडेसेस की, तो कोई और गॉड्स और गॉडेसेस भी थे, जैसे रुद्र, जिन्हें गॉड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। दोस, जिन्हें ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ वर्ल्ड कह के बुलाते हैं। उसके अलावा यम, जिन्हें गॉड ऑफ डेथ कह के बुलाते हैं। अश्विन और नसत्य, जिन्हें गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमॉर्टैलिटी कह के बुलाते हैं। अदिति, जिन्हें मदर ऑफ गॉड्स कह के बुलाते हैं। और सिंधु, जो रिवर गॉडेस थी। इन गॉड्स को कई बार एनिमल्स के साथ भी विजुअलाइज किया जाता था, पर बेसिकली एनिमल्स की कोई वर्शिप के सबूत नहीं मिले हैं, ठीक है। नेचर जो था ऋग्वेदिक रिलीजन का, वो हीनोथीस्म था, मतलब वो काफ़ी सारे गॉड्स में बिलीव करते थे, और कभी किसी किसी सिचुएशन में कोई गॉड को वो ऊपर रख लेते थे, किसी सिचुएशन में दूसरे गॉड को ऊपर रख लेते थे। आगे जो ये कि जो ऋग्वेदिक पीरियड का रिलीजन था, वो प्राइमरीली गॉड्स की वर्शिप किस तरह से करते थे, वो तो सिंपल सेरेमनी होती थी, यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइसेस देते। सेक्रीफाइस अब किस चीज़ का हो रहा है? सेक्रीफाइसेस में वो या तो मिल्क दान करते हैं, ठीक है, यज्ञ में घी, ठीक है, ग्रेन मतलब अनाज हो गया, ठीक है, फ्लैश मतलब मांस हो गया, और सोम को वो उसका सेक्रीफाइस देते थे, ठीक है। तो ये थी बात ऋग्वेदिक पीरियड की रिलीजन के बारे में। थैंक यू सो मच।